Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is in English and Urdu language also. ये वीडियो इंग्लिश में भी है और उर्दू लैंग्वेज में भी है. पूरा वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, पूरा आखिर तक देखिए और पूरे वीडियोस मेरे देखिए, डाउनलोड करिए. Kindly watch my all videos, download this and gain the knowledge of N days. And this video is very important. All videos, please keep my all videos and please download my all videos in your computers and see them one by one. In this video I want to tell you that the prophecies mentioned about the Masih Dajjal related to Tamim Dari in Hadith. ओके मैं इस वीडियो में ये बयान करना चाहता हूँ कि तमीम दारी का वाक़या मसीह दज्जाल के बारे में जो आया है उसकी वजाहत करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम met a person Tamim Dari. He was among the Christians. He was a Christian. He came and narrated the prophecies, symbolic prophecies which he heard from his brother or one of his people, and as it is he disclosed before Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, but they were all symbolic actually. It does not mean that the Masih Dajjal is already present in one of the lands, one of the islands. It doesn't mean that. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam certified this to be true. It means Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam certified the prophecies of Masih Dajjal in the symbolic language heard by Tamim Dari. Did you understand? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, तमीम दारी जो एक सहाबी बने, जो ईसाई थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने एक किस्सा बयान किया जो कि सिंबॉलिक है, यानी पिक्चर लैंग्वेज में एक पेशगोई है किसी दूसरे नबी की. उन्होंने बयान किया आकर, और वो ईसाइयों में से थे, वो आकर उन्होंने बयान किया और वो उन्होंने सुना था अपने भाई से या किसी रिश्तेदार से. वो किस्सा उन्होंने वैसे बयान किया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह दज्जाल कोई आइलैंड में ऑलरेडी है, वो जंजीरों में कैद है वगैरह. इससे मतलब ये है कि मसीह दज्जाल की पेशन गोई को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा जाना, सच्चा माना, क्योंकि इसी पेशन गोई में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आने की भी बशारत मौजूद है. क्योंकि वो मसीह दज्जाल वो पूछता है क्या उम्मियों के नबी आ गए, अगर आ गए हैं क्या पानी सूख गया है, क्या उनका इनकार किया गया या इकरार किया गया. तो पता ये चला एक पेशगोई सिंबॉलिक थी तस्वीरी ज़बान में ईसाइयों के पास, जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र भी मौजूद था और मसीह दज्जाल के निकलने का भी जिक्र मौजूद था. तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और इसको सच्चा बयान किया. उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है. तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मसीह दज्जाल जो है कहीं पर कैद है. उन्होंने कहा कि ये पेशगोई सच है, क्योंकि मुआफ़िक़ लगी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशगोइयों के मसीह दज्जाल के बारे में. So Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam did not say that the prophecies disclosed by the Tamim Dari, which was heard by one of his companions, he did not say that Masih Dajjal is already existing. He certified these prophecies to be true because they were very much similar to the prophecies of the Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Did you understand? So it doesn't mean that Masih Dajjal is somewhere in the island already tied up in the chains. No. So such prophecies are already there in Bible, Revelation chapter number 12, chapter number 13. If you see the Revelation chapter, the prophecies are symbolic. So symbolic prophecies were there among with the Christians and the Jews. So Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam certified this prophecy and it came true also. The Masih Dajjal is available in an island that is London, surrounded by water, and that island is on the western island, because
the place where the sun is setting. It means the Western Island. So that is the London. Did you understand? The head of the Masih Dajjal group, that is Mirza Masroor Ahmad, at present is based in London. Did you understand? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आकर तमीमदारी क़िस्सा बयान करे थे, वो हकीकत में सिम्बॉलिक यानी तस्वीर ज़बान की पेशगोई थी पिछले नबी की, जो ईसाइयों के पास मौजूद थी, जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने का भी जिक्र मौजूद था। वो आकर जब बयान करे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उससे सही जाना, और वो आज सही भी साबित हुई है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया का जो इस वक्त लीडर है, मसीह दज्जाल जो प्रेजेंट खलीफा है, वो लंदन में है, वो आइलैंड में है जहाँ पर सूरज डूबता है, यानी सूरज डूबने की जगह यानी वेस्टर्न आइलैंड। बात सही निकली। लिहाजा दिस इज द सीक्रेट ऑफ द तमीमदारीज़ प्रोफेसीज which is spoken in front of मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक राज है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो तमीमदारी पेशगोई आकर सुनाए थे, जो अपने भाई से सुने थे। बात क्लियर हो गई। ये तीनों चारों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इफ़ यू कंबाइन ऑल द narrations about the तमीमदारी in the hadith, then you will come to this conclusion inshallah. Okay, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Today is 23rd November 2015.